Hello students, today we will be solving the last practical question of accounting of holding companies, that is question number 10. The link of the question is being given in description box. You are requested to download it, read it so that you can understand how we have solved this question number 10, the last question of accounting of holding companies. First I will try to read few important sentences. In this question it is given there are two companies, A Company Limited and B Company Limited. A Company Limited has purchased 5,000 equity shares of B Company Limited on 1st April 2019, and on the date of acquisition, that is 1st April 2019, reserve and profit and loss account stood at, the profit and loss account is amounted is rupees 33,000 and reserve amount is 4,500. Our first step is to calculate the majority ratio, that is step number 1. Calculation of majority ratio. The formula to calculate majority ratio is total number of shares acquired by holding company. Holding company is A Limited. A Limited has purchased how many equity shares? A Limited has purchased 5,000 equity shares of B Limited, and total number of equity shares of B Limited we can see in the balance sheet. There is a capital of 75,000 rupees. And each share is of rupees 10 each. Will divide capital divided by paid up value per share. So we'll get the number of equity shares. That is 75,000 divided by 10. It is 7,500 multiplied by 100. It comes to 2 by 3 multiplied by 100. We can solve in percentage also. We can take the majority and minority ratio in fraction also. So it is an unusual percentage, so we will consider it is in a fraction format. So we will take a majority ratio as 2 by 3. We will not multiply it with the percentage. Step number 2, computation of minority ratio. Formula for minority ratio, it is, if we calculate in percentage, it is 100% minus majority ratio. If we are calculating in fraction, our formula is 1 minus majority ratio. So 1 minus 2 by 3. We will take LCM, that is 3. 3 multiplied by 1 minus 2. It is equal to how much? 3 minus 2 divided by 3. That is equal to 1 by 3. So the minority ratio came 1 by 3. That is 1/3. Before going to the next step, what we'll do, we'll write the date of opening and closing date of the financial year. Opening date it is given 1st April 2019 and closing date it is given how much? It is 31st March 2020. Then what we'll see in the balance sheet at what date holding company, that is A Limited, has acquired shares in B Limited. The date is 1st April 2019. So only the opening date it is considered as a pre-acquisition period. An entire 12 months is of the financial year is considered as post-acquisition period. So we'll start to solve the step number 3, that is computation of capital profit. Yes, it is also called as a pre-acquisition profit. Again, in the previous question we have discussed 3 treatment of dividend. First, it was proposed dividend of previous financial year which is paid in the current financial year. What we have did, हमने क्या किया वहाँ पे, अगर पिछले साल का डिविडेंड है और पिछले साल का डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी इस साल पे किया है और जो भी जितना भी डिविडेंड पे किया है उसका पर्टिकुलर पोर्शन मेजॉरिटी शेयर होल्डर का पोर्शन अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर को रिसीव हुआ है तो हम वहां पे उसको एज अ ट्रीट करते हैं
होल्डिंग कंपनी के लिए एज अ कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करने के हिसाब से हमने उसका दो ट्रीटमेंट करते हैं। दो ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं? पहला ट्रीटमेंट करते हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हम वहां पे प्रपोज डिविडेंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर का पोर्शन हम क्या करते हैं वहां पे माइनस करते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हम कैपिटल कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट जब बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में वो डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, लेकिन वो कैपिटल नेचर का है, इसलिए उसको हम वहां से भी माइनस करेंगे। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का है, वो पिछले साल के अगर शेयर होल्डर को पे किया है तो उसका हमको कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पिछले साल के वो प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी में बोला गया कि इन जून 2019 बी लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 12% इन रेस्पेक्ट ऑफ 2018-19। तो 18-19 का जो डिविडेंड था उसको बी लिमिटेड ने कब पे किया? जून 2009 को पे कर दिया। पे करने से पहले वो प्रपोज करेगा, और प्रपोज करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट पिछले साल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पिछले साल का जो बैलेंस है प्रॉफिट और रिजर्व का, वो इस साल का क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सब्सिडरी कंपनी का ओपनिंग प्रॉफिट और ओपनिंग रिजर्व गिवन है, कितना गिवन है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है 4500 एज ऑन 1 अप्रैल 2019। सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1/4/2019। ये ओपनिंग प्रॉफिट है या पिछले साल का ये प्रॉफिट है? पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 33,000। अगर कंपनी पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेस करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 2018-19। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 12%। तो हमने 12% किसका, तो हम 12% किसका निकालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%। तो यहाँ पे जो प्रपोज डिविडेंड आया सब्सिडरी कंपनी का वो आया 9,000, और ये 9,000 ओपनिंग प्रॉफिट जो पिछले साल का प्रॉफिट है उससे क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो 33,000 माइनस 9,000, तो ये आ गया आपका 24,000। हमने इसका टोटल किया तो ये टोटल कैपिटल प्रॉफिट आ गया 28,500। तो हमको क्या याद रखने की जरूरत है, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, और पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड अगर इस साल होल्डिंग कंपनी को रिसीव हो रहा है तो होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं, हम सबसे पहला ट्रीटमेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कंप्यूटेशन के लिए, और वहां पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर का पोर्शन शेयर ऑफ प्रपोज डिविडेंड वहां पे माइनस करेंगे। और हम दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है लेकिन वो कैपिटल नेचर का था, इसलिए हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर का जो पोर्शन ऑफ प्रपोज डिविडेंड है वो कहां से माइनस करेंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट से। लेकिन अगर उसकी सही एंट्री पास हुई है तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रेवेन्यू प्रॉफिट हम इसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है वो पोस्ट एक्विजिशन पूरा 12 मंथ्स है। अब यहाँ सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे प्री ओपनिंग डेट है और पूरा का पूरा क्लोजिंग डेट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको जब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल माइनस प्री, क्योंकि जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट या बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन है उसको एज पर द पीरियड दैट इज प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि प्री एक्विजिशन कितना है तो हम पोस्ट एक्विजिशन
निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंप्यूट रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला क्या बना, टोटल माइनस प्री। टोटल मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो हमारी टोटल वैल्यू है, और जितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट करते समय जितनी भी वैल्यू आ गई उससे हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी के दिया है 6500, तो हमने यहाँ लिखा 6500, उससे माइनस किया, उससे क्या माइनस किया, जो हमारा प्री एक्विजिशन रिजर्व है। प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना आ रहा, 4500, तो हमने यहाँ उसको 4500 से क्या किया, माइनस किया। तो यहाँ पे प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना आया, 2000। सिमिलर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है सब्सिडरी कंपनी का 40,000 रुपीज, तो हमने यहाँ लिखा 40,000 माइनस प्री एक्विजिशन, हमारा प्रॉफिट का कितना अमाउंट कितना आया 24,000, तो हमने यहाँ माइनस किया 24,000 को। यहाँ पे हम देखेंगे टोटल हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट की अमाउंट आई है दैट इज 16,000 रुपीज आई है। उसके बाद हम चेक करते हैं और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है कि द कंपनी हैज ऑल्सो पेड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 4%। सब्सिडरी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है। इंटरिम डिविडेंड अगर पे किया तो उससे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है 16,000, उस करंट ईयर के प्रॉफिट से हमने क्या कर दिया, प्लस किया इंटरिम डिविडेंड। सब्सिडरी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया है, 4% पे किया है। उसका टोटल कैपिटल का अमाउंट कितना है 75,000, और 75,000 का 4% अगर हम कंप्यूट करेंगे तो ये आता है 3,000। तो हम यहाँ पे 3,000 प्लस कर देते हैं। टोटल हमारा प्रॉफिट कितना आया 19,000, और टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट का कंप्यूटेशन हुआ 21,000। इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट हमने क्या किया, जितना भी इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर में आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको ऐड किया। टोटल ऐड किया हमने 3,000 रुपीज यहाँ पे। दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या होगा, ये किसको किसको मिला है, एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर को मिला है और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मिला है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का पोर्शन हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट से माइनस करेंगे, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर का पोर्शन हम कंसोलिडेटेड पीएनएल से माइनस करेंगे। तो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड पीएनएल में इस अमाउंट को इंक्लूड कर दिया गया। अब हम एक और चीज चेक करते हैं। बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, वो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है। अगर इसका मतलब ऑलरेडी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस हो चुका है। हमको क्या याद रखना है कि अगर प्रपोज डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस हुआ है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग कंपनी का एज इट इज बुक्स में आएगा, और सब्सिडरी कंपनी का अगेन प्रपोज डिविडेंड करंट फाइनेंशियल ईयर का दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक मेजॉरिटी पोर्शन है और एक माइनॉरिटी पोर्शन है। मेजॉरिटी पोर्शन को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में, और माइनॉरिटी पोर्शन को एज इट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम एज ए लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ परचेज लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। टोटल 5,000 शेयर्स खरीदे, और 5,000 शेयर्स कितने में खरीदे, 90,000 रुपीज में। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी दैट इज बी लिमिटेड। इक्विटी कैपिटल बी लिमिटेड में कितना है 75,000, मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे, मेजॉरिटी रेशियो से। मेजॉरिटी रेशियो कितना आ गया 2/3। यहाँ पे हमने परसेंटेज में नहीं लिया, हमने यहाँ फ्रैक्शन में कंप्यूट किया है।
75 ये आ गया 50,000, इसको हमने माइनस किया। नेक्स्ट हम लेस करते हैं कैपिटल प्रॉफिट जो हमने कंप्यूट किया है, उस कैपिटल प्रॉफिट को भी मेजॉरिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करके यहाँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना आया 28,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये कितना आया 19,000 माइनस किया हमने। और फाइनल जो आंसर आया, न बोनस शेयर इश्यू हुआ है, न और कोई ट्रीटमेंट है, हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड अगर पिछले साल का इस साल होल्डिंग कंपनी को मिलता तो यहाँ हम उसको माइनस करते, सब्सट्रैक्ट करते। तो ये टोटल आ रहा है 69,000 माइनस 90,000, टोटल आ गया कितना 21,000। स्टेप नंबर 6, that is calculation of minority interest। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे बी लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाई करेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी रेशियो से। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो कितना है 1/3, तो यहाँ पे आ गया कितना 25,000। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ऐड करेंगे, पहला कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट हमारा है 28,500, उसको मल्टीप्लाई किया हमने माइनॉरिटी रेशियो से 1/3, यहाँ पे अमाउंट आया 9,500। फिर हमने और ऐड किया रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना आ रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट आया 21,000 का मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो इट इज 1/3, यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया 7,000। सारे आइटम को प्लस किए तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 41,500। यहाँ से अब ये हमने एडजस्टमेंट किया इंटरिम डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड पे हो चुका है ऑलरेडी, करंट ईयर का प्रॉफिट उसमें से कम हो चुका है, तो हमने उसको क्या किया प्लस किया। पहला ट्रीटमेंट हमने उसको रेवेन्यू प्रॉफिट में ऐड किया। फिर यहाँ पे दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, लेस करेंगे इंटरिम डिविडेंड, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरिम डिविडेंड माइनस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिसीव हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो। इंटरिम डिविडेंड की टोटल अमाउंट कितनी है 3,000 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो कितना है 1/3, तो यहाँ पे आ गया 1,000 रुपीज, और 1,000 रुपीज को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया 40,500 हमारा क्या आया 40,500 हमारा आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया। बिफोर स्टार्टिंग स्टेप नंबर 7 हम देखते हैं क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में अगर पॉइंट नंबर बी देखें तो हमारे को एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है कि सैलरी क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31st March 2020 इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹12,000 पेएबल टू बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ने कहीं ना कहीं बी लिमिटेड से गुड्स परचेज किया होगा और उस परचेज टोटल परचेज जितना भी किया होगा उसमें से 12,000 का अभी भी पेएबल अमाउंट दिखा रहा है बी लिमिटेड को, और उस 12,000 पे बी लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है 3,000 प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे बी लिमिटेड ने टोटल 12,000 के गुड्स सेल किए हैं और उस 12,000 की गुड्स पे उसने कितना प्रॉफिट कमाया है 3,000 प्रॉफिट कमाया है। तो सेल वैल्यू इट इज हाउ मच 12,000 एंड प्रॉफिट अमाउंट इट इज इक्वल टू हाउ मच 3,000 रुपीज। तो यहां से हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज,
तो प्रॉफिट ऑन सेल इट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज आया इट इज इक्वल टू हाउ मच, 25% आया। अब हम यहाँ पे क्या कंप्यूट करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो हमारा जो अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अनरियलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मेजॉरिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12,000 का पर सेल किया है और उस 12,000 के सेल में अभी हम चेक करेंगे कि ए लिमिटेड को सेल किया तो ए लिमिटेड के स्टॉक में कितने गुड्स बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है पॉइंट नंबर डी में कि स्टॉक ऑफ ₹51,000 ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूडेड अनसोल्ड गुड्स परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड एट ₹9,000। तो यहाँ पे ए लिमिटेड ने टोटल कितने गुड्स खरीदे थे और उस जितने भी गुड्स खरीदे थे उसमें कितना अभी भी ए लिमिटेड के स्टॉक में बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 9,000। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना हुआ, 9,000। उस 9,000 पे सब्सिडरी सब्सिडरी कंपनी या बी लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 25%, मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो हमारा क्या है, 2/3। तो 9,000 का 25% याद है 2,250 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इट इज इक्वल टू ₹1,500। तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आया, 1,500। अब इस अनरियलाइज प्रॉफिट को हमको क्या करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट का सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, ये कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते समय माइनस होगा। और दूसरा कहां पे माइनस होगा, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक की वैल्यू से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं, हम होल्डिंग कंपनी की लिखते हैं। यहाँ पे हमको क्या चीज याद रखना है, ये पूरे के पूरे वर्किंग नोट में सिर्फ 3 क्वांटिटेटिव वैल्यू सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के बुक से आती है और बाकी सारी वैल्यूज किसके बुक से आती है, सब्सिडरी कंपनी की। तो जब हम मेजॉरिटी रेशियो कंप्यूट करते हैं तो वहां पे जब हम न्यूमरेटर में नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड लिखते हैं तो वो होल्डिंग कंपनी के बुक से लिखते हैं। दूसरा, जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी होल्डिंग कंपनी का लिखते हैं। और तीसरी वैल्यू जो हम होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट से लिखते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ए लिमिटेड इट इज अ होल्डिंग कंपनी और ए लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो है 75,000। हमने यहाँ पे लिखा 75,000। नेक्स्ट हम क्या करते थे, सबसे पहले हम स्टेट ऐड कर देते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, और यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे मेजॉरिटी रेशियो से, कि ये पूरा का पूरा हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर का पीएनएल अकाउंट कंप्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया वो कितना आया, 21,000 मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो कितना है, 2/3। यहाँ पे अमाउंट कितना आया, 14,000। ये टोटल किए ये आ गया 89,000। अब इससे सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे, जो हमने अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट किया है 1,500, तो यहाँ पे लेस किए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पहला ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं दैट इज 1,500 रुपीज, माइनस कर दिए तो यहाँ पे आ गया 87,500। फिर यहाँ पे एक और अमाउंट लेस करेंगे, इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड हो गया। अगर सब्सिडरी कंपनी ने पे कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली उसको हमने कहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड की अमाउंट है टोटल 3,000 रुपीज।
और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेजॉरिटी रेशियो से। तो इंटरिम डिविडेंड कितना आया, इंटरिम डिविडेंड है 3000 रुपीज का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मेजॉरिटी रेशियो से। मेजॉरिटी रेशियो इट इज 2/3। तो ये आया कितना 2000 रुपीज, इसको भी हम माइनस कर देंगे, ये आ गया 85,500। इसके बाद हम चेक कर देते हैं प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज द शेयर्स हैज बीन एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को शेयर्स एक्वायर किए, तो ऑटोमेटिकली पूरा जो प्रॉफिट है हमारा क्या बन जाता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी हो चुका है, नहीं हुआ है, तो हमको उसको माइनस करना रहता है, लेकिन ऑलरेडी वो डिडक्ट होके बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे, सिर्फ सब्सिडरी कंपनी के प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट करेंगे। सब्सिडरी कंपनी अगर डिविडेंड प्रपोज कर रही है तो अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी को उसका शेयर ऑफ प्रपोज डिविडेंड मिलेगा, और अगर वो प्रपोज डिविडेंड मिलेगा तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रपोज्ड डिविडेंड बाय बी लिमिटेड multiplied by again majority ratio। प्रपोज डिविडेंड बी लिमिटेड का अगर बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो इट इज 7,500 मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो इट इज हाउ मच, 2/3। तो ये कितना आया, ये आया 5,000। हमने यहाँ पे टोटल किया, इट कम्स टू हाउ मच, 90,500। अब हम अपना लास्ट स्टेप दैट इज मेन आंसर सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी दैट इज बी लिमिटेड। सबसे पहले लायबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, 4 वैल्यूज को याद रखना है। सबसे पहला है लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट। ये 3 चीजें सिर्फ होल्डिंग कंपनी की लिखनी है, और सबसे होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ उसे हमको कंसिडर नहीं करना है। कितना अमाउंट कंसिडर नहीं करना है, जो अमाउंट उसने सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज करते समय लगाया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ है, दैट इज 2 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 लाख। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है जनरल रिजर्व। तो हम यहां लिख रहे हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का इट इज गिवन 1,05,000। उसके बाद हम चेक कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। तो हमें यहां लिख रहे हैं कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। हमने प्रिपेयर किया, बनाया है, कैलकुलेट किया है। तो ये कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट आया 90,500 का। नेक्स्ट गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम यहाँ लिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे एक ए लिमिटेड का है और एक बी लिमिटेड का क्रेडिटर्स है। ए लिमिटेड का क्रेडिटर्स है 20,000 और बी लिमिटेड का क्रेडिटर्स है 29,700। 20,000 एंड 29,700 टोटल क्या ये आ गया 49,700। अब हम एडजस्टमेंट में चेक करते हैं क्या इंटर कंपनी ओइंग है। तो पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड्स अ सम ऑफ ₹12,000 पेबल टू बी। तो ए लिमिटेड का क्रेडिटर्स हुआ, बी लिमिटेड का डेटर्स हुआ। कॉमन अमाउंट कितना हुआ 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज डेटर से भी माइनस करना है और क्रेडिटर से भी माइनस करना है। माइनस इंटर कंपनी ओइंग दैट इज हाउ मच 12,000 माइनस किए, और यहाँ पे फिर अमाउंट आया उसको ऑर्डर कॉलम में लिख रहे हैं हम लोग 37,700। उसके बाद गिवन है प्रपोज डिविडेंड
अगेन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का पूरा हम प्रपोज डिविडेंड लिखेंगे 20,000 रुपीज, बट जब बी कंपनी का लिखेंगे तो बी कंपनी के जो प्रपोज डिविडेंड था उसका मेजॉरिटी शेयर का पोर्शन हमने कहाँ पे इंक्लूड कर लिया, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में इंक्लूड कर लिया। तो बचा कितना, 7,500 टोटल डिविडेंड था, 5,000 हमने कहाँ पे इंक्लूड किया, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में। तो बचा कितना, 2,500। टोटल के यहाँ पे आ गया 22,000। नेक्स्ट हम चेक कर देते हैं, यहाँ पे हमारा आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो हम उसको लिख लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, 40,500। एसेट साइड आते हैं, एसेट साइड सबसे पहला एसेट गिवन है बिल्डिंग। होल्डिंग कंपनी का बिल्डिंग गिवन है 1,10,000 और सब्सिडरी कंपनी का बिल्डिंग गिवन है 44,500। तो ये आया 1,54,500। नेक्स्ट गिवन है मशीनरी। होल्डिंग कंपनी का है 57,500 और सब्सिडरी कंपनी का है 16,000। दोनों को प्लस किए तो ये आ गया 73,500। यहाँ पे गुडविल भी आया है तो हम यहाँ पे गुडविल को लिख लेते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना आया है, 21,000। फिर हम चेक कर देते हैं, फर्नीचर लिखा हुआ है। फर्नीचर होल्डिंग कंपनी का है 30,500 और सब्सिडरी कंपनी का 9,000 है, तो ये आ गया 39,500। नेक्स्ट गिवन है स्टॉक। स्टॉक होल्डिंग कंपनी का गिवन है 51,000 और सब्सिडरी कंपनी का गिवन है 34,000। दोनों को प्लस किए तो ये आ गया 51,000 प्लस 34,000 इट इज 85,000। और इससे हमने क्या किया, अनरियलाइज प्रॉफिट कर दिया माइनस। अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 1,500 रुपीज आया है, तो हमने 1,500 रुपीज कर दिया माइनस। ये आ गया 83,500। नेक्स्ट गिवन है डेटर्स। डेटर्स ए लिमिटेड का गिवन है 48,500 और बी लिमिटेड का गिवन है 41,100। दोनों को प्लस किए तो ये आ गया 89,500। यहाँ पे माइनस किए उससे इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है, इंटर कंपनी ओइंग, तो हमने उसको माइनस कर दिया। इंटर कंपनी ओइंग कितना है, 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज हमने माइनस किया, ये आ गया 77,500। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट गिवन है बैंक। बैंक होल्डिंग कंपनी का गिवन है 32,500 और सब्सिडरी कंपनी का गिवन है 14,100। दोनों को टोटल किए तो ये आ गया 46,600। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ चला गया, टोटल इन्वेस्टमेंट का यूज करके हमने गुडविल कंप्यूट कर लिया। अब उसको हमको लिखना नहीं है। एक बार फिर से बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स का जो मैंने अमाउंट लिखा है वो डेटर्स का अमाउंट है 48,500 प्लस 41,100, तो ये आ गया आपका 89,600 आया। यहाँ पे मैंने लिखा उसको 89,500, यहाँ पे 89,600 है और यहाँ पे है 77,600। अब हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल लगा लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 1,54,500 प्लस 73,500 प्लस 21,000 प्लस 39,500 प्लस 83,500 प्लस 77,600 प्लस 46,600। जो हमारा बैलेंस शीट टैली कर रहा है वो टैली कर रहा है 4,96,200। बैलेंस शीट टोटल हो गया 4,96,200।
96,200. So this is our last question. हमने ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेट की लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा. आपको और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपको कुछ डाउट रहा तो उसको फिर मुझे पूछना है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.